Good morning, everybody. Good morning, sir. Yesterday we started with the chapter budgetary control and definition क्या था budget का? What is the budget? It is the estimation of what? It contains quantitative and financial information to achieve the targeted object in a coming period. ठीक है? And it also laid down the policy to be pursued in the forthcoming period. ठीक है? So that is what the budget we already started. और कल जो हमने बात की थी, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने किए थे, it was on a different functional budgets. जैसे कि आपका टारगेट दिया हुआ है to achieve that particular target of a profit. In order to achieve that target, you require to have number of functional budget. जैसे कि you require to prepare to find out how many quantities to be sold. So you have to prepare sales budget in terms of quantity, in terms of value. Then in order to how much sold, you require to find out how much to be produced. So production budget बनाते थे हम लोग. Production budget, then you require to prepare raw material consumption budget. So raw material purchase budget. Then number of workers required. So manpower budget. So these different how to prepare this functional budget. ये वाला पार्ट हमने कल डिस्कस किया था. आज जो पार्ट हमको डिस्कस करना है, इसमें दो बातें हैं. And then chapter will be over. That is your fixed budget and flexible budget, and then how to prepare cash budget. ये तीन चीजें हमको देखनी है. So I think if I remember correctly, कल हमने सिर्फ हेडिंग दिया था fixed budget and flexible budget. ठीक है? So let's come to that fixed budget and flexible budget. So please come to problem number 10. Problem number 10. Through the problem we'll discuss ये what is this fixed and flexible budget. क्या दिया है यहाँ पर? ABC Limited prepared a budget for the production of 1 lakh units of the only commodity manufactured by them for a costing period as under rupees in lakhs. So basically the budget is given to you for 1 lakh units. क्या दिया है इसमें? Raw material 2,52,000, direct labor 75,000, direct expenses 10,000, works overhead 60% fixed 2,50,000, administration overhead 80% fixed 40,000, selling overheads 50% fixed 20,000. The actual production during the period was only 60,000 units. Calculate the revised budget for 60,000 units and a certain revised budgeted cost per unit. The actual production during the period was only 60,000 units. देखिए ओरिजिनल बजट कितने का है आपका? It is of 1 lakh units का बजट दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ? सिर्फ 60,000 यूनिट्स का. अब देखिए 1 लाख का बजट आपको दिया था, बनाया था, and actual production is only 60,000. So calculate the revised budget for 60,000 units and ascertain the revised budgeted cost per unit. ठीक है? So 1 लाख का बजट दिया हुआ है. On that basis you have to prepare the budget for 60,000 units. अब ये 1 लाख का बजट बनाया था, फिर 60,000 का क्यों बनाना पड़ता है? That we'll discuss. But before that we'll solve this problem first. देखिए 1 लाख का बजट आपको दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले जो 1 लाख का बजट है ना, present it properly, and then we'll make the budget for 60,000 units. So how it will be? Say that. Statement of flexible budget. You make the column particulars, then 1 lakh unit, 60,000 unit, और एक हम एडिशनल अपनी ओर से भी करेंगे 80,000 यूनिट का. मैं मेरी ओर से एक ऐड करता हूँ उसके अंदर. कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. पर्टिकुलर्स एंड आगे 3 कॉलम और करना. 1 lakh units, 60,000 units एंड मेरी ओर से ऐड करना हूं 80,000 यूनिट्स.
वाह वाह, क्या म्यूजिक है। 1 लाख यूनिट्स 60,000 और मेरी ओर से एक बोनस आपको 80,000। बजटरी कंट्रोल में सबसे सिंपल इश्यू अगर कोई होता है दैट इज टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ बजट। वैसे आपका बजट सिंपल है, पूरा कॉस्टिंग ही सिंपल है, सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। ठीक है, कम से कम आपको इस चीज की तो बहुत आदत पड़ गई है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो अब आप लिखिए मत, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, एक प्रॉब्लम को ठीक से समझ लीजिए, व्हाट टू डू एग्जैक्टली। प्लीज डू नॉट राइट एक्चुअल वर्चुअल, कोई नहीं लिखेगा। नाउ जस्ट टेल मी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स्ड कॉस्ट है? इट इज ऑलवेज वेरिएबल। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, इट इज रॉ मटेरियल 2,52,000, then direct labor it is 75,000, direct expenses 10,000। then आगे जो आपको दिया है वर्क्स ओवरहेड 60%, फिक्स 2,50,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 80% फिक्स 40,000, सेलिंग ओवरहेड 50% फिक्स 20,000। इसके अंदर फिक्स एंड वेरिएबल दोनों पार्ट है। सो व्हाट आई विल डू, वर्क्स ओवरहेड मैं इसमें दो हिस्से कर दूंगा, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। देखिए मेरा वर्क्स ओवरहेड कुल मिलाकर 2,50,000 है, इसमें से 60% फिक्स्ड है। सो 2,50,000 का 60% दैट कम्स टू 1,50,000 फिक्स्ड, मतलब वेरिएबल इज रिमेनिंग 40%, दैट इज 1 लाख इज वेरिएबल। देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो आपको दिए कुल मिलाकर है 40,000, जिसमें से 80% फिक्स्ड है, 80% फिक्स्ड है, मतलब 32,000 इज फिक्स्ड, so remaining 8,000 is variable। then your selling overheads, in that variable and fixed। so कुल मिलाकर overheads है 20,000, जिसमें से 50% फिक्स्ड है, मतलब 10,000 fixed and 10,000 is variable। so what is the total cost? 6,47,000। therefore cost per unit 6,47,000 divided by 1 lakh, it is 6.47। is this clear? this is what the budget for 1 lakh unit। अब एक्चुअल आपने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किया 60,000, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया 60,000। तो देखिए 60,000 जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है और आपने बजटेड था 1 लाख। अब बजटेड 1 लाख को अगर आप एक्चुअल 60,000 से अगर कंपेयर करेंगे तो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छा ही दिखेगा। आर यू गेटिंग हियर? क्योंकि आपका ओरिजिनल बजट टारगेट कितने का था, 1 लाख यूनिट का था, एक्चुअल में प्रोड्यूस कितने किए, सिर्फ 60,000 यूनिट। तो एक बात मुझको लॉजिकल बताइए, अगर समझो मैं 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, एक सिंपल सी बात, लेट्स से 1 लाख यूनिट्स ये हमारा बजट था, ठीक है, एंड इन दैट माय कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज 10 लाख, माय एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज 10 लाख, सचिन यहाँ, ठीक है। देन लेकिन मेरा जो एक्चुअल है, लेट्स से माय एक्चुअल इज 60,000 and my actual cost is only 7 lakh। 7 lakh। Tell me whether I
followed the target or not, whether I control the cost or not. Yes or no? Yes or no? See, my targeted cost कितनी थी? 10 लाख. मेरे एक्चुअल में कॉस्ट कितनी लग गई? सिर्फ ओनली 7 लाख ना. 7 लाख के लग गया, 3 लाख का सेविंग हुआ ना फिर इसके अंदर. शाबाश, गिव इट अप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेरी गुड गोइंग. कॉस्ट में सेविंग हुआ, 30% का सेविंग हुआ. यस और नो? व्हाई नॉट? नंबर ऑफ यूनिट हाँ वो 60,000 है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट तो बच गया 3 लाख. पर यूनिट कॉस्ट 3 लाख बच गया ना, और क्या चाहिए? एक एक यूनिट का कहाँ सोचते हो? ग्रॉस में देखो, ग्रॉस में बच्चों. हाँ, पर यूनिट के लिए कॉस्ट ज्यादा हुई, लेकिन फिर भी 3 लाख का सेविंग हुआ नहीं हुआ? फिर कितना होना चाहिए था? कितनी होनी चाहिए थी मेरी कॉस्ट? 60,000 के लिए कितनी होनी चाहिए थी? 6 लाख होनी चाहिए थी. सर आपका बजट जो है ना वो 1 लाख यूनिट का है, जिसके लिए कॉस्ट 10 लाख. आपने 60,000 प्रोडक्शन किया और कहते हो 7 लाख की कॉस्ट लग गई और 3 लाख का सेविंग हुआ. ऐसे उल्टे काम नहीं होते, ठीक है? आप एक काम कीजिए, अगर आपका 1 लाख का बजट जो वो 10 लाख है ना, तो जरा इसको रिवाइज कीजिए और जरा इसको रिफाइन कीजिए और जरा देखिए, अगर आप पहले से 60,000 का बनाते बजट, तो आपका एक्चुअल बजटेड कॉस्ट क्या होना चाहिए था. And then compare that budgeted 60,000 with actual 60,000. You cannot compare original 1 lakh budget with the actual 60,000. Are you getting here? इसलिए डायरेक्टली आप जो ये आपका फिक्स बजट है 1 लाख यूनिट का, इसके साथ आप एक्चुअल परफॉर्मेंस डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. You can compare the actual performance provided your actual quantity is also 1 lakh. Are you getting here? अगर आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर 1 लाख यूनिट का है, तो फिर आपका एक्चुअल 1 लाख एंड बजटेड भी 1 लाख, तो आप शौक से कंपैरिजन कीजिए. लेकिन अगर आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर आपका वो नहीं है जो आपकी बजटेड क्वांटिटी है, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर बजटेड, इन दैट केस जो आपका ओरिजिनल बजट था, ठीक है, उस बजट को रिवाइज कीजिए और जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है वो क्वांटिटी के लिए अगर पहले से बजट बनता, तो फिर बजट के हिसाब से क्या कॉस्ट रहती है वो निकालिए एंड कंपेयर दैट विथ योर एक्चुअल परफॉर्मेंस. इज दिस क्लियर? सो अगर आप 1 लाख के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इट मींस यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड बजट, यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड बजट. लेकिन जो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप बजट निकालते हो, फिर से नया बजट बनाते हो, देन दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल बजट. सो एक बजट आपको दिया हुआ है 1 लाख यूनिट्स का. दिस इज व्हाट 1 लाख यूनिट का बजट. आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस 60,000 है. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द बजट फॉर 60,000. वही अगर आपका एक्चुअल में अगर 80,000 है, तो फिर उसका बजट क्या है? तो एक बजट आपको दिया है, उस बेसिस पर आपको बाकी क्वांटिटीज के बजट्स बनाने हैं. सो बजट जो आपको बनाना होगा, नया बजट जो बनाना पड़ेगा, दैट मे बी फॉर द क्वांटिटी लेस और मोर देन बजटेड क्वांटिटी, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस में फर्क हो सकता है. अगर आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस 1 लाख की जगह 1 लाख से ज्यादा है, तो जो 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स है आपके, जितने भी यूनिट्स बनेंगे टोटल, उसके लिए बजट बनाओ. 1 लाख से कम है तो उसके लिए बजट बनाओ. तो जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस की जो क्वांटिटी है, फॉर दैट फाइंड आउट द बजट, उसके लिए बजट क्या आएगा, एंड दैट बजटेड फिगर इज टू बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल, एंड देन यू कैन से whether you perform underperform. Are you getting here? Now, so अब देखिए बात सिंपल है बहुत. ये हमारा 1 लाख का बजट जो उन्होंने डेटा दिया था उसके बेसिस पर we have to prepare the budget for 60,000 units. Now basically एक बात बताइए मुझको, ये मेरा 2,50,000, this is my variable cost for 1 lakh, तो 60 के लिए कितना आएगा? 1,51,200. साथ में कल से चलाएंगे तो 80,000 का भी मिल जाएगा इमीडिएटली. 2,01,600. Is it? Then 75,000 for 1,75,000. For 1,75,000 तो 60 के लिए कितना? 45. तो 80 के लिए कितना? 60,000. This 10,000 direct expenses variable है. 1 लाख के लिए 10,000.
तो 60 के लिए कितना 6000, 80 के लिए कितना 8000. देन वर्क्स ऑलरेडी वेरिएबल, 1 लाख के लिए 1 लाख वेरिएबल, तो 60,000 के लिए 60,000, 80,000 के लिए 80,000. फिक्स्ड 1 लाख के लिए 1,50,000, 1 लाख के लिए 1,50,000, तो 60,000 के लिए कितना 1,50,000 के 90,000, 1,50,000. Because whatever your quantity produced, fixed remains fixed. Fixed not going to change as per the change in quantity. Fixed will remain fixed. This is the most important point. Yes? ठीक है यार, कौन सा बड़ा तीर मार दिया. हाँ, ये 1,50,000, ये भी कितना आएगा आपका 1,50,000. ये जो आपका फिक्स्ड है, your fixed cost will remain fixed. ठीक है. आप क्वांटिटी भले 1 लाख से कम प्रोड्यूस करें या ज्यादा प्रोड्यूस करें. क्लियर? सो इसलिए मैंने क्या किया, पहले 1 लाख का बजट पहले बना के लिया पूरा. उसके अंदर जो फिक्स पार्ट है ना, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा. नाउ फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन 8,000, 1 लाख के लिए 8,000, तो 60 के लिए कितना 4,800, एंड 8,000 के लिए 6,400, and the fixed 32,000 will remain fixed now, will remain 32,000, will remain fixed only. Then selling overheads 10,000, 1 lakh के लिए 10,000, तो 60,000 के लिए 6,000 and 80,000 के लिए 8,000. The fixed component 10,000 will remain 10,000 only. Got it? Yes. बताइए फिर what is the total cost? 4,65,000 divided by 60,000 करेंगे, that comes to 7.75, and 80,000 के लिए कितना आएगा 5,56,000 divided by 80,000, 6.95. Is this clear? समझ में आ गया आपको? So in this way you have to prepare the budget. On the basis of fixed budget you have to prepare flexible budget. एक fixed quantity आपको दी जाएगी, उसका budget दिया जाएगा, and some other quantities will be given to you, and you have to prepare the budget. Yes, write down.
हो गया सबका? सो वेरी सिंपल. सबसे सिंपल पार्ट होता है हमारे बजट में क्या. आइए क्वेश्चन नंबर 11. Number 11. With the following data for a 60% activity, prepare a budget for production at 80% and 100% activity. Production at 60% activity, 600 units. And the figures given to you: material rupees 100 per unit, labor rupees 40 per unit, expenses rupees 30 per unit, factory expenses 40,000, इसमें से 40% fixed, and administration expenses 30,000, 60% fixed. तो देखो बजट आपको दिया हुआ है 60% का, मतलब 600 यूनिट का, एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू प्रिपेयर द बजट फॉर 80% एंड 100%. बनाइए स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट. मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया. स्पीड देखो, स्पीड, चलो मत. मटेरियल कॉस्ट पहले मैं 600 का कर लूं. Then factory expenses, that is also called as factory overheads. 40,000 से 40% fix है. So 40,000 का 40%, that is 16,000. 16,000 fixed, 24,000 variable, and administration expenses 30,000, 60% fixed. So 30,000 का 60%, that is 18,000 is fixed and 12,000 is variable. पहले में से जो बेसिक आपको दिया हुआ है ना, उसका बजट हमेशा पहले प्रिपेयर कर लीजिए. Then the budget for 801,000. For 800, material cost will be 80,000. For 1,000 it will be 1 lakh. Labor 600 के लिए 24,000, तो 800 के लिए 32,000 and 40,000.
फ्लैट एक्सपेंसेस 600 के लिए 6000, 800 के लिए 8000, 1000 के लिए 10000. फैक्ट्री ओवरहेड्स 600 के लिए 24000, तो वेरिएबल जो है वो 800 के लिए वेरिएबल आएंगे 32 एंड 1000 के लिए विल बी 40,000. और जो फिक्स पार्ट है will remain constant, will remain same 16,000, 16,000. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 600 के लिए 12,000 वेरिएबल, तो 800 के लिए 16,000 एंड 1000 के लिए 20,000. एंड द फिक्स पार्ट जो 18 है वो 800 के लिए भी 18 ही रहेगा एंड 1000 के लिए भी 18 ही रहेगा. Therefore, total cost. पहला कितना है 60, 1,60,000, 2,02,000 and 2,44,000. 1,60,000, 2,02,000 and 2,44,000. Got it? This is how to prepare your flexible budget. हो गया सबका? Come to the next, number 12. For production of 10,000 electrical automatic irons, the following are the budgeted expenses. Direct material rupees 60 per unit, direct labor rupees 30 per unit, variable overhead rupees 25. Fixed overheads 1,50,000 है जो कि per unit wise आते हैं 15. At 10,000 level it is 1,50,000, so 1,50,000 by 10,000 it is rupees 15. वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट मतलब ये वेरिएबल है 5. सेलिंग एक्सपेंसेस जिसमें से 10% फिक्स्ड है रुपीज 15. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रुपीज 50,000 रिजिड फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन इज रुपीज 5 एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड रुपीज 5 per unit. Total is 160. Prepare a budget for production of 6,000, 7,000, 8,000 irons showing distinctly variable cost, fixed cost and total cost. Showing distinctly variable cost, fixed cost distinctly. मतलब इसमें क्या करना होगा आपको? अभी जैसे हमने इस प्रॉब्लम में किया ना, फैक्ट्री ओवरहेड लिए वेरिएबल फिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वेरिएबल फिक्स्ड, तो इंस्टेड ऑफ दैट सारे वेरिएबल पहले और सारे फिक्स्ड नीचे, इस तरह से प्रेजेंटेशन करना होगा. Yeah, the data is given to you, budget is given to you for 10,000 units and you have to prepare it for 6,000, 7,000 and 8,000. Okay, fine. We'll go for this. पर्टिकुलर्स एक कॉलम हमारा 10,000 यूनिट्स के लिए 6,000, 7,000 and 8,000. नहीं है सबसे पहले
वेरिएबल कॉस्ट, पहले से भी वेरिएबल एंड देन फिक्स्ड. सो डायरेक्ट मटेरियल इट इज रुपीज 60 पर यूनिट. सो टोटल अमाउंट के लिए करेंगे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल 60 पर यूनिट, मतलब ये 10,000 के लिए कितना हुआ? इट इज 6 लाख. पहले 10,000 का पूरा कर लेते ठीक से. डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर. आई होप आप मेरे साथ साथ में लिख रहे हैं, ठीक है? मेरे से आगे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेरिएबल डायरेक्ट लेबर 30, सो 10,000 के लिए 30, सो टोटल कितना हो गया वो? 3 लाख. देन वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड it is at 10,000 into 25, 2,50,000. Then fixed overheads rupees 1,50,000. और देखिए वो दिया भी कितना आपको? per unit 15, so 10,000 into 15 that comes to 1,50,000. मतलब पूरा का पूरा फिक्स्ड ही है वो. एक 4-5 लाइन बीच में छोड़ दो. then से fixed overhead, say fixed cost. Under that fixed overhead 1,50,000. Then variable expenses direct rupees 5. So variable expenses पूरा का पूरा variable ही है rupees 5. So 10,000 into 5, 50,000. Selling expenses 10% fixed. Selling expenses 10% fixed rupees 50. मतलब इसमें कुछ variable है कुछ fixed है. So I can say in the variable selling expenses and fixed में भी selling expenses. Now see that. एक मिनट please. Everyone please. Selling expenses हमारे कितना rupees 15. आपका per unit 15 आता है. पर यूनिट 15, इसका मतलब 10,000 यूनिट्स के लिए 15, ये आपका फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों मिलाकर है, ठीक है? सो 10,000 into 15 मतलब टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हुए हमारे? 1,50,000. आउट ऑफ दैट 1,50,000 10% इज फिक्स्ड, मतलब कितना? 15,000 इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग 1,35,000 इज वेरिएबल. Clear? Then administration expenses rupees 50,000 rigid for all level of production. तो 50,000 फिक्स्ड है, 50,000 फिक्स्ड है. और आप देखिए आपका कितना आता है? 5 रुपए ना पर यूनिट. सो 10,000 into 5 कितना होता है? 50,000 पर यूनिट के लिए 5 रुपए दिए हैं. 10,000 यूनिट के लिए 10,000 into 5 becomes 50,000 और है भी 50,000. इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पूरे के पूरे फिक्स ही है 50,000, उसके अंदर वेरिएबल वाला कोई चक्कर ही नहीं है. सो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पूरे के पूरे फिक्स में आएंगे आपके 50,000. अगर समझो, एक मिनट, अगर समझो आपको ऐसा देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रुपीज 6 देते हैं आपको, पर यूनिट 6 देते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पर यूनिट आपको 6 दिया होता और ब्रैकेट में दिया रुपीज 50,000 रिजिड फॉर ऑल लेवल. इसका मतलब ये होता कि 10,000 into 6 कुल मिला के 60,000 हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, जिसमें से 50,000 फिक्स्ड है, मतलब ये 10,000 वेरिएबल आता फिर. क्लियर? देन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड. सो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वेरिएबल में भी आएगा एंड फिक्स्ड में भी आएगा. It is 5. So 10,000 into 5, 50,000. ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है. उस 50,000 का 20%, 50,000 का 20% मतलब 10,000 is fixed and balance 40,000 is variable. वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. 5 रुपए आपको दिए, 5 रुपए का 20% मतलब 1 रुपया. So 1 into 10,000, 10,000 is fixed and 5 का बैलेंस 80% मतलब 4 रुपए वेरिएबल. सो 4 into 10,000, 40,000 is
वेरिएबल, ऐसा भी कर सकते हो। यस, ये हो गया आपका बजट फॉर 10,000 यूनिट्स। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू 6,000, 7,000 एंड 8,000. In that case, material cost for 6,000 it will come to 3,60,000, for 7,000 4,20,000, and for 8,000 4,80,000. Is it? Labor cost 10,000 के लिए 3 lakh, so this is 1,80,000, 2,10,000 and 2,40,000. 10,000 के लिए 2,50,000, so 6,000 के लिए कितना आता है? 1,50,000, 1,75,000 and 1 lakh 2 lakh. 10,000 के लिए वेरिएबल एक्सपेंसेस 50,000, तो 6,000 के लिए 30,000, 35,000 and 40,000. सेलिंग एक्सपेंसेस 1,35,000, 60% के लिए कितना आएगा? 81,000, 94,000 and 1,07,000. 94,500. ये कितना है? 1,08,000. Then distribution expenses 40,000, 24,000, 28,000 and 32,000. Just do the total at this stage. $13,75,000, 8,25,000, 9,52,500, 9,62,500 and is it 11 lakh? Yes. And ये fix overhead simply time pass will remain same 150. टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, पहले से फिक्स एक्सपेंस की टोटल दिखाओ। 2 लाख ना, 2,25,000 ना, 2,25,000, 225 and 225. The total expenses, variable plus fixed. 1375 plus 225 is 16 lakh. 10 lakh 50,000, 11 lakh 87,500, 13 lakh 25,000. बस इसमें सब वेरिएबल एक जगह पर एंड फिक्स्ड अलग, ऐसा हमने किया, बाकी इट वाज वेरी सिंपल. Come to the next number 13. Try number 13. सिंपल है ना, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल.
आज तो बड़ा अच्छा लगता होगा कॉस्टिंग के अंदर, बस सर ऐसे 5 एग्जाम्पल आ जाए एग्जाम में 10-10 मार्क के बाद खत्म, लगे फाइनल की तैयारी में लग जाए फिर। Number 13. The expenses budgeted for production of 10,000 units in a factory are furnished below. Per unit information is given to you. Material 70, labor 25, variable overheads 20, fixed overheads rupees 1 lakh, that per unit is rupees 10. Variable expenses direct 5, selling expenses 10% fixed is 13, distribution expenses 20% fixed is rupees 7, and administrative expenses rupees 50,000 rupees 5. Total cost of sales per unit rupees 155. Prepare a budget for production of 8,000 units and 6,000 units showing total and unit cost. Assume that administrative expenses are rigid for all levels of production. Same here. So this is homework. Okay. Number 13 is for homework. Come to number 14. वो भी होमवर्क में जाने वाला है, ठीक है। The cost of an article at a capacity of 5,000 units is given below. For a variation of 25% in capacity above or below this level, the individual expenses vary as indicated below under B. A and B. Material cost 25,000 100% varying, labor cost 15,000 100% varying, power 1000 today 180% varying. So the 80% variable और बाकी 20% fixed. Repairs and maintenance 2000 75% variable. Then stores 1000 100% varying. Inspection 500 out of which 30% is varying. Depreciation 10,000 100% fixed. Admin expenses 5,000 25% variable. Administration 5,000 25% variable, and selling overheads 3,000 out of that 50% is variable. Cost per unit is 12.55. You are required to prepare budget at production level of 4,000 units and 6,000 units. Also find the unit cost of the product under each individual expenses at both these production level. 5,000 का दिया हुआ है, आपको 4 और 6,000 का करना है. So absolutely simple. Nothing is there. That is homework. Then number 15. क्या दिया नंबर 15 में देखिए. Draw a flexible budget for overhead expenses on the basis of following data and determine the overhead rates at 70%, 80% and 90% plant capacity. 70% capacity, 80% capacity, 90% capacity. तो देखिए 80% के लिए आपको दिया हुआ है ऑलरेडी. वेरिएबल ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट लेबर 80% के लिए 12,000, स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स 4,000, ये स्पेसिफिकली वेरिएबल आपको दिया ही है. देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड जिसके अंदर पावर है जो कि 30% फिक्स एंड 70% वेरिएबल, कुल मिलाकर 20,000. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 60% फिक्स एंड 40% वेरिएबल, टोटल 2,000. Then fixed overheads, depreciation 11,000, insurance 3,000, salary 10,000 and total overheads 62,000. Estimated direct labor hours 1,24,000. Got it? करते आएगा आपको, बिल्कुल करते आएगा. So इसमें आपको एक ही करना है बाद में. You have to find out overhead rate. Overhead rate मतलब कुछ नहीं है, जो भी आपके देखिए 80% के लिए कितने आवर्स है आपके 1,24,000 ना. वैसे तो सारे पहले आप एक्सपेंसेस निकालेंगे, टोटल कितना आता है, 70% के लिए कितना आता है, 90% के लिए कितना आता है, और फिर उसके लिए अगर 80% के लिए 1,24,000 आवर्स है तो उस बेसिस पर 70% के लिए कितने, 90% के लिए कितने, ठीक है. एंड ऑन दैट बेसिस फिर जितने आपके ओवरहेड्स आएंगे डिवाइडेड बाय दैट 70% आवर्स एंड 90% कॉस्ट को 90% आवर्स से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दी ओवरहेड rate. Got it? So this is homework. 13, 14, 15. These 3 problems for the homework. Then
Now please come to number 17. Number 17. Pentex Limited has prepared its expenses budget for 20,000 units in its factory for the year 2013 as detailed below. Per unit information is given to you. Direct material rupees 50, direct labor is 20, variable overheads 15, direct expenses 6. Selling expenses 20% fixed rupees 15, factory expenses 100% fixed rupees 7, administration expenses 100% fixed rupees 4, distribution expenses 85% variable rupees 12, total 129. Prepare an expense budget for the production of 15,000 units and 18,000 units. IPCC May 2013 for 7 marks. This is होमवर्क करेंगे क्या? पहले 3 प्रॉब्लम दिए, कर लेंगे. देखिए कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका. एग्जाम का आया हुआ प्रॉब्लम, 7 मार्क्स का प्रॉब्लम, स्टिल यू आर डिमांडिंग फॉर होमवर्क. गुड. कल छुट्टी है. किसे? वेरी गुड. तुमने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया क्या? बिल्कुल नहीं, कोई छुट्टी नहीं. उल्टा मैं तो आज इतना खुश हूँ क्योंकि भंडारी सर ने बोल दिया कि सर आप आज का पूरा दिन ले लीजिए, ठीक है, कल का मुझको आधा दे दीजिए. मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर. मेरा बजट आज खत्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आधा खत्म हो जाएगा, कल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा खत्म हो जाएगा, परसों से खत्म. कल तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. वाई टू वेस्ट द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, इसलिए स्पिरिट ये रखो कि सर कल भी आने का टाइम ना रखो, सर आज ही जितना ले लो, खत्म कर दो आज ही. यस, रात के 12 बजे तक याद. वेरी गुड. कल छुट्टी दो, लेकिन कल छुट्टी दो. हाँ, यस. नंबर 17 इज होमवर्क. ठीक है. देन देखो आपको 13, 14, 15 and 17 all are homework. Now, 2 issues मुझको डिस्कस करने, important one. Come to point number 9 and then number 16. Point number 9 पर आते पहले. Point number 9. क्या दिया है यहां पर? Number 9. Action plan manufacturers normally produce 8,000 units of their product in month in their machine shop. For the month of January, they had planned for production of 10,000 units. Owing to a sudden cancellation of a contract in the middle of January, they could only produce 6,000 units in a January. क्या दिया है? Action plan manufacturers normally produce 8,000 units of their product in month in their machine shop. So normal production आपका 8,000 units का था. For the month of January, they had planned for a production of 10,000 units. कोई एक order मिली होगी, that's why they decided to produce 10,000 units. But क्या हुआ? Owing to sudden cancellation of a contract in the middle of January, they could only produce 6,000 units. So कुछ contract cancel हो गया, so they produce only 6,000 units. Indirect manufacturing costs are carefully planned and monitored in the machine shop, and the foreman of the shop is paid a 10% of the saving as bonus when in any month the indirect manufacturing cost incurred is less than the budgeted provision. क्या दिया है? Foreman of the shop is paid 10% of saving. Foreman of the shop is paid 10% of the saving as bonus when in any month the indirect manufacturing cost incurred is less than the budgeted provision. तो जितना हमारा budgeted cost है, अगर उससे आपका actual कम हुआ तो जितना भी saving होगा उसका 10% foreman को as a bonus करके दिया जाएगा. The foreman has put in a claim
that he should be paid a bonus of 88.5. Foreman has put in a claim that he should be paid a bonus of rupees 88.5 for the month of January. The works manager wonders how anyone can claim a bonus when the company has lost a sizable contract. The relevant figures are as under. ये जो foreman है वो कहता है कि उसका bonus बनता है 88.5 and the works manager wonders how anyone can claim a bonus when the company has lost a sizable contract. So the relevant figures are indirect manufacturing, normal month, expenses for January, planned for January, then actuals in cost. देखिए, the first जो expenses for normal, then planned for January and actuals in January. ठीक है? So it is पहला जो कॉलम है वो आपका expenses for normal production. Expenses for normal production, then planned for January and then actual for January. मतलब पहला जो कॉलम है आपका वो कितने क्वांटिटी के लिए है? 8000, क्योंकि हम लोग नॉर्मल 8000 प्रोड्यूस करते थे. सो पहला कॉलम आपका 8000 क्वांटिटी इंडिकेट करता है. सेकंड आपका प्लान, बिकॉज वी प्लान टू प्रोड्यूस 10000. ठीक है, वो सेकंड आपका 10000 क्वांटिटी का है. एंड थर्ड इज एक्चुअल, दैट इज 6000. सो देखिए क्या है फिर. सैलरी ऑफ फोरमैन 1000, 1000, 1000. इनडायरेक्ट लेबर 720, 900, 600. इनडायरेक्ट मटेरियल 800, 1700. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 600, 650, 600. पावर 800, 875, 740. वो प्लीज जरा वो तीन कॉलम में तीन फिगर लिख ले. पावर के आगे 800 है, तो प्लीज टेक दैट 800 इन द फर्स्ट कॉलम, 875 in second column and 740 in third column. Please do the correction. Then tools consumed 320, 400, 300. Rates and taxes 150, 150, 150. Depreciation 800, 800, 800. Insurance 100, 100, 100. Total 5290, 5875 and 4990. Do you agree with the works manager? Works manager जो कहता है कि उसको 88.5 मिलना चाहिए since there is a saving. So सवाल है, do you agree with the works manager? Is the foreman entitled to any bonus for the performance in January? Substantiate your answers with facts and figures. देखिए, जो फोरमैन जो कहता है, डिमांड फोरमैन की है, फोरमैन को बोनस मिलना चाहिए कितना? 10% ऑफ सेविंग. अब हुआ क्या, देखिए हमने जनवरी के लिए कितने प्लान किए थे, हमने कितने यूनिट्स के लिए प्लान किया था? हमने 10,000 यूनिट्स के लिए प्लान किया था. एंड अकॉर्डिंगली व्हाट वाज आवर टोटल कॉस्ट? 5875. But due to some reason we produce only 6000 units and the total cost is 4990. अब फोरमैन है कि डिमांड करता है कि सर जो आपने बजटेड किया था 5875, लेकिन एक्चुअली लगा कितना सर? 4990. So what is the saving? 5875 minus 4990 कितना आता है? 885. वो क्या कहता है? फोरमैन का कहना ऐसा है कि आपने जो प्रोविजन की थी, यू मेड द प्रोविजन ऑफ 5875 एक्सपेंसेस. हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 4990. ठीक है, तो उसके हिसाब से सेविंग कितना हुआ? 885. तो 885 का अगर सेविंग हुआ तो इसलिए उसका कहना है कि उसको 10% का बोनस मिलना चाहिए. 885 का 10% इज हाउ मच? 88.5. दैट इज व्हाट द डिमांड. यू रीड सेकंड पैरा पढ़िए आप. Indirect manufacturing costs are carefully planned and monitored in the machine shop, and the foreman of the shop is paid a 10% of saving as bonus. 10% of the saving as bonus when in any month the indirect manufacturing expenses incurred is less than budgeted provision. तो budgeted provision के हिसाब से अगर आपका actual expenditure अगर कम है तो जितना भी saving होगा उसका 10% दिया जाएगा bonus. इसलिए in the next para the foreman has put in a claim that he should be paid a bonus of 88.5. तो उसके हिसाब से उसका जो 88.5 का जो क्लेम आता है वो है 5875, that is what you planned,
and actual expenditure is 4,990, so there is a saving of 885. इसलिए उसका कहना है कि 88.5 का बोनस दीजिए, ठीक है. And on this, what is going to the third para? The works manager, second line, the works manager wonders how anyone can claim a bonus when the company has lost a sizable contract. तो हमारा तो 10,000 प्लान था, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ सिर्फ 6,000, 4,000 की तो ऑर्डर गई, मतलब 40% तो हमारा तो ऑर्डर ही कैंसिल हो गई, तो उसमें किसे बोनस कैसे मिलेगा. बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाई दैट फोरमैन इज क्लेमिंग द बोनस, क्योंकि वो दो गलत चीजें कंपेयर कर रहा है. वो 10,000 का बजट ही इज कंपेयरिंग विद 6,000 एक्चुअल. ही इज कंपेयरिंग 10,000 बजट कॉस्ट 5,875 और एक्चुअल में है 6,000 का एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो यू आर कंपेयरिंग 10,000 बजट विद 6,000 एक्चुअल, इसलिए सेविंग आ रहा है वहां पर, एंड ही इज डिमांडिंग द बोनस. अब आपको ये बताना है इन द लास्ट क्वेश्चन क्या दिया उसके अंदर, इज द फोरमैन एंटाइटल्ड टू एनी बोनस फॉर द परफॉर्मेंस इन जनवरी, सब्सटेंशिएट योर आंसर्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स. आपको ये बताना है कि वेदर दैट मैनेजर इज एंटाइटल्ड फॉर एनी बोनस. नो कैसे बोल सकते हैं आप, डायरेक्टली मुंह फाड़ के बोल दिए नो, ठीक है. So then find out whether he is really entitled or not, and whether there is actual saving or not. ये आपको find out करना पड़ेगा, ठीक है. So the question is how to find out. See, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा. Prima facie तो उसको बोनस को is not entitled because what you are comparing is 10,000 budget with 6,000 actuals, ठीक है. So अब आप देखिए इसके अंदर आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज दी, अगर हम 6,000 का ही पहले से बजट करते तो 6,000 के लिए हमारा बजटेड कॉस्ट क्या होता. 6,000 के लिए पहले से बजट बनता तो 6,000 के लिए क्या बजट बनता, क्या कॉस्ट आती. कंपेयर दैट 6,000 बजट विद 6,000 एक्चुअल एंड देन फाइंड आउट वेदर देयर इज एक्चुअल सेविंग और वेदर द कॉस्ट इज इंक्रीज्ड. आर यू गेटिंग हियर? सी, अभी यहां पर आपको जनवरी के एक्सपेंस आपको दिए हुए 8,000 के नॉर्मल एंड 10,000 जो कि आपका प्लान था एंड 6,000 का एक्चुअल. तो जरा 8,000 एंड 10,000 के फिगर टू फिगर कंपेयर करके देखिए कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सी वेरिएबल है और कौन सी सेमी वेरिएबल है. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आर यू गेटिंग हियर? 800 और 1000 क्वांटिटी की आपको 8,000 और 10,000 क्वांटिटी की आपको इंफॉर्मेशन दी है. उसके बेसिस पर फाइंड आउट कीजिए कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है और कौन सी सेमी वेरिएबल है. सो लेट्स से पहले दो कॉलम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. सैलरी ऑफ फोरमैन 1,000 मतलब ये क्या है, ये फिक्स्ड है. लेफ्ट राइट में कहीं पे लिख कर रखिए फिक्स्ड. इनडायरेक्ट लेबर 720 900. देखिए 8,000 के लिए 720, तो जरा डिवाइड कीजिए 720 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 10,000. 900 आना चाहिए, अगर वेरिएबल है तो 900 आना चाहिए. कितना है वहां पर 900 ही, मतलब ये क्या है सर, बिल्कुल वेरिएबल है. इनडायरेक्ट मटेरियल 8,000 के लिए 800, तो 10,000 के लिए कितना 1,000 और यहां पर कितना है 1,000, तो ये क्या है पूरा वेरिएबल है. देन repairs and maintenance for 8,600 and for 10,000. अगर वेरिएबल होता तो 600 divided by 8,000 into 10,000 it would be 750. अगर परफेक्टली वेरिएबल होता तो होता 600, 8,000 के लिए 600 तो 10,000 के लिए होता 750. और अगर फिक्स्ड होता तो 600 would be 600 only. लेकिन ना ही ये 10,000 के लिए 600 है, ना ही 750 है, ये 650 है. इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल है. गेटिंग, ये सेमी वेरिएबल है. इसमें सम पार्ट इज अ फिक्स्ड एंड सम पार्ट इज वेरिएबल. इसको वेरिएबल एंड फिक्स में कैसे डिवाइड करेंगे? हाउ यू कैन फाइंड आउट हाउ मच इज अ वेरिएबल एंड हाउ मच इज अ फिक्स्ड? Yes, very correct.
मार्जिनल कॉस्टिंग हमने देखा था, डिफरेंस इन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अ क्वांटिटी, डिफरेंस इन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अ क्वांटिटी। तो ये जो आपका 600 एंड 650 है, सो जो 50 रुपए बढ़ा है, दिस इज इंक्रीज ओनली फॉर वेरिएबल प्रोपोर्शन। आर यू गेटिंग हियर? तो इसमें वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, 650 माइनस 600 दैट इज 50 फॉर एडिशनल 2000 यूनिट्स। सो व्हाट इज अ वेरिएबल पर यूनिट? पर यूनिट वेरिएबल कितना आएगा फिर? वो 50 रुपए बढ़ा ना आपका सिर्फ। सो 50 डिवाइडेड बाय 2000 इंक्रीज इन अ कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन अ क्वांटिटी। सो 50 डिवाइडेड बाय 2000 0.025 इज वेरिएबल, 0.025 वेरिएबल। सो देखिए 0.025 इंटू 8000 कीजिए भला, 0.025 इंटू 8000 दैट इज 200। मतलब जो 600 रुपए कॉस्ट है ना 8000 की, उसमें से 200 वेरिएबल एंड 400 फिक्स्ड। आर यू गेटिंग? एंड फिर से कीजिए 0.025 इंटू 10,000, 0.025 इंटू 10,000 250। मतलब जो 10,000 की कॉस्ट है ना 650, उसमें 250 वेरिएबल एंड 400 इज फिक्स। फिक्स दोनों इसमें फिक्स ही रहता, सेम ही रहता। गॉट इट? यस, डिटेल में करेंगे आगे हम इसको। देन पावर 800 875। अगर ये वेरिएबल होता ना, अगर ये वेरिएबल होता तो जितना 800 है, 8000 के लिए 800, तो 10,000 का आता है 1000। अगर वेरिएबल होता तो, अगर फिक्स होता तो अगर 8000 के लिए 800 तो 10,000 के लिए भी 800 ही रहता। लेकिन ये 875 है, मतलब ये सेमी वेरिएबल है। सो अगेन इसके लिए आपको फिर से डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफरेंस इन अ कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अ क्वांटिटी। गॉट इट? यस, आगे चलिए। देन टूल्स कंज्यूम 320 400। वेरिएबल की सेमी वेरिएबल की फिक्स? वेरिएबल है, परफेक्टली वेरिएबल है। देन रेट्स एंड टैक्सेस 150 150 फिक्स्ड, डेप्रिसिएशन 800 800 फिक्स्ड, इंश्योरेंस 100 100 फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये दो कॉस्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड पावर, दिस टू आर सेमी वेरिएबल। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका पहले वर्किंग करना होगा, फाइंड आउट व्हाट इज द वेरिएबल पर यूनिट एंड व्हाट इज द फिक्स्ड कंपोनेंट, ठीक है। एंड देन व्हाट विल डू, देन विल प्रिपेयर द बजट फॉर डिटेल बजट फॉर 8000 10,000 एंड फॉर 6,000। तब जाके बजट बनेगा 6,000 का, एंड देन दैट बजटेड 6,000 कैन बी कंपेयर विद द एक्चुअल 6,000 गिवन टू यू, एंड देन वी कैन से whether there is a saving or there is a excess cost. I hope this is clear. So please write down. लिखिए, in the given problem, repairs and maintenance and power cost is semi variable, full stop. Therefore it is required to be divided in variable cost per unit and fixed cost. Full stop. It is calculated as follows. It is calculated as follows. अब इसमें हमको क्या करना पड़ता है? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। तो एक काम कीजिए, टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कीजिए, मेक द 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड पावर। पांच 7 लाइन का स्टेटमेंट बनेगा सिर्फ, पर्टिकुलर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड पावर।
Write down in the particulars column. Total cost at 10,000 units. Total cost at 10,000 units. How much? 650, 875. रिपेयर से मेंटेनेंस की 650 एंड पावर के लिए 875. Then total cost at 8,000 units. Total cost at 8,000 units. तो 8,000 के लिए कितना है? 600 and 800. Next thing. Therefore, increase in cost for 2,000 units. Increase in cost for 2,000 units. कितना? It is 50 and 75. Next. Therefore, variable cost per unit. Variable cost per unit. Write down. नीचे ब्रैकेट में लिख के रखिए increase in cost divided by increase in quantity. Increase in cost divided by increase in quantity. What is increase in cost? In the first case it is 50 by 2,000. So 50 by 2,000, 0.025. 0.025. And second case में 75 by 2,000, 0.0375. बराबर ना? 0.0375. Next line. Therefore, total variable cost for 8,000 units. For 8,000 units. देखिए 0.025 into 8,000. So replacement में कितना आएगा? 200 and power में आएगा 0.0375 into 8,000. It is 300. Therefore, fixed cost. देखिए 8,000 यूनिट की आपने टोटल कॉस्ट लिखी वहां पर सबसे पहले कितनी है वो 600 बराबर है ना. उसमें से आपकी वेरिएबल कितनी गई 200. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं उसी में वर्किंग करके दे रहा हूं आपको फिक्स कॉस्ट का भी. कितना आएगा फिर 400. देखिए आपकी 8,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट आपने पहले लिखी है 600. उसमें से वेरिएबल कॉस्ट फॉर 8,000 गई 200. सो फिक्स कम्स टू 400. सिमिलरली पावर के लिए 8,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट थी 800. उसमें से वेरिएबल गई 300. मतलब फिक्स कितनी 500. गॉट इट? समझ में आ गया? योर फिक्स कॉस्ट इज 400 and 500. 400 for repairs maintenance and 500 for power. Got it? And variable is 0.025 and 0.0375. Clear? बाकी की सारी कॉस्ट या तो परफेक्टली वेरिएबल है या फिर परफेक्टली फिक्स्ड है. Got it? Now prepare the budget. Now prepare the budget for 10,000, 8,000 and 6,000. या फिर जो दिया उसी सीक्वेंस में कीजिए 8,000, 10,000, 6,000. सो बनाइए. एक काम कीजिए, एक मिनट. कॉलम करते वक्त 8,000, 10,000, 6,000 बजट, 6,000 एक्चुअल भी लीजिए साथ साथ. अमाउंट के 4 कॉलम बनेंगे. particulars
particulars, 8,000 units, 10,000 units, 6,000. ये budgeted है and 6,000 actual. 10,000, 8,000, 10,000, 6,000. This is budgeted and 6,000 actual. So पहले तीन कॉलम में लोग बजटेड फिगर ले रहे हैं फॉर 8,000, 10,000, 6,000 एंड लास्ट वाला कॉलम हमारा 6,000 एक्चुअल का है ताकि हमको डिफरेंस समझ में आए. चलिए राइट डाउन वेरी फर्स्ट. अब जो वेरिएबल है वो वाले पहले ले लेते हैं. वेरिएबल वाले पहले ले लेंगे हम लोग. सो प्लीज गिव द हेडिंग वेरिएबल. पर्टिकुलर्स में लिखिए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और एक 6-7 लाइन छोड़ के लिखिए फिक्स कॉस्ट. 6-7 छोड़ दीजिए एंड देन राइट डाउन फिक्स्ड कॉस्ट. हाँ, सो सैलरी ऑफ फोरमैन ये क्या है? फिक्स्ड है. सो राइट डाउन सैलरी ऑफ फोरमैन फिक्स्ड में लिखेंगे, फिक्स पार्ट में लिखेंगे सैलरी ऑफ फोरमैन. इट इज सबके लिए 1,000, 1,000 इवन एक्चुअल भी 1,000 है और 6,000 के लिए बजटेड भी 1,000 ही आएगा. 8,000, 10,000, 6,000 बजटेड के लिए 1,000 इवन एक्चुअल भी आपका 1,000 ही है. देन इनडायरेक्ट लेबर ये आपका वेरिएबल है. सो वेरिएबल में लिखेंगे इनडायरेक्ट लेबर 720, 900. 720, 900. तो बताइए 6,000 के लिए कितना होना चाहिए था? 540. सो 6,000 बजट के लिए 540 लेकिन उसका एक्चुअल कितना है? एक्चुअल में 600 है. इसमें जो कॉलम दिया आपको एक्चुअल का दिया हुआ है. सो आपका 540 बजटेड 6,000 के लिए 540 लेकिन एक्चुअली इज 600. देन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि हमारा वेरिएबल है. सो वेरिएबल में आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल 800, 1,000. तो बजटेड 6,000 के लिए कितना? 600 लेकिन एक्चुअल में कितना है? 700. देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पहले वेरिएबल में ले लीजिए, पहले वेरिएबल में लीजिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. अभी वेरिएबल में कितना आएगा? वो 0.025 हमने कैलकुलेट किया था ना. सो 0.025 इंटू 8,000 दैट इज 200. फिर 1000 के लिए कितना आएगा? 0.025 इंटू 1,000 सॉरी इंटू 10,000 इज 250 एंड 6,000 बजट के लिए 150. 0.025 इंटू 6,000 इट इज 150. गॉट इट. अभी एक्चुअल कितना है? वेट एक्चुअल में उन्होंने कुल मिलाकर 600 दिया आपको. अभी उसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों होगा ना, तो दोनों होगा. सो डू वन थिंग हमारा फिक्स कितना है? 400. तो वी आर अज्यूमिंग कि फिक्स रहा होगा, मतलब ये वेरिएबल कितना हुआ? 200. सो 6,000 एक्चुअल में लिखेंगे आप 200 एंड नीचे के पार्ट में आएगा फिक्स में आएगा आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फिक्स पार्ट में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना? इन ऑल द कॉलम 400, 400, 400 इवन एक्चुअल भी 400. देखिए 6,000 का एक्चुअल फिगर 600 दिया हुआ है, उसमें से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 400 जो फिक्स है वो वही रहा है और जो बाकी का 200 है वो मेरा वेरिएबल का पार्ट है. हालांकि आप लोग उल्टा भी कर सकते हैं. यू कैन कीप द वेरिएबल एज 150 एंड यू कैन टेक द फिक्स्ड 450. 50 बड़ा है, वो फिक्स है कि वेरिएबल है, किसी एक में आपको लेना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है यहाँ पर. देन पावर वेरिएबल में लेंगे पहले आप पावर. सो फॉर 8,000 0.0375 इंटू 8,000 आई थिंक इट वॉज 300 ना, हमने पहले किया था. सो वेरिएबल पावर वेरिएबल 8,000 के लिए 300, 10,000 के लिए 375 एंड 6,000 के लिए 225. अब आप देखिए आपकी टोटल पावर कॉस्ट कितनी लगी? एक्चुअल में कितनी लगी? 740.
740 के अंदर फिक्स 500 है, फिक्स तो 500 है ना, तो वेरिएबल कितना है 240. सो 6000 एक्चुअल में आप लिखेंगे वेरिएबल पावर इज 240. एंड इन द नेक्स्ट पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट में लिखेंगे आप पावर इन ऑल द कॉलम्स इट इज 500. 8000, 10000, 6000 बजट के लिए 500, इवन एक्चुअल के लिए भी 500. क्लियर सबको? आगे और टूल्स कंज्यूम, ये वेरिएबल है हमारा टूल्स कंज्यूम. सो 8000 बजट के लिए 320, 10000 बजट के लिए 400, इसलिए 6000 बजट के लिए 240, लेकिन एक्चुअल कितना है 300. 6000 एक्चुअल के लिए 300. देन रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये बिल्कुल फिक्स्ड. तो चारों कॉलम में आपकी फिगर सेम रहेगी. रेट्स एंड टैक्सेस इन एवरी कॉलम 150, 150, 150, 150, इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ. डेप्रिसिएशन इन ऑल द कॉलम्स, बजट के 3 और एक्चुअल का 1, सब में 800. सेम थिंग फॉर इंश्योरेंस 100. सो 8000 की आपकी कॉस्ट आई होगी 5290 टोटल कॉस्ट, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड. इज इट 5290? तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है. 10000 के लिए 5875 और एक्चुअल की टोटल 4990. अब 6000 बजट की टोटल करो सिर्फ 4705, मतलब 6000 की बजटेड कॉस्ट. और बाकी के लिए कहाँ एनर्जी लगाते हो, उसकी टोटल दी ना प्रॉब्लम के अंदर आपको. सिर्फ 6000 बजट की टोटल मारो 4705, मतलब 6000 की बजटेड कॉस्ट थी 4705, whereas actual cost is 4990. So whether there is a saving? नो, उल्टा उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई. कितनी? 285 एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई. हो सके तो फोरमैन से पेनल्टी लो 10%. अब इज दिस क्लियर? सो प्लीज राइट डाउन. आगे लिखिए कमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ, budgeted cost for 6000 units, budgeted cost for 6000 units was rupees 4705, was rupees 4705, whereas actual cost is 4990. Therefore actual cost is increased by rupees 285, ब्रैकेट में लिखेंगे, that is 4990 minus 4705. next time, therefore foreman is not entitled for any bonus.
Clear? One of the very important problem. इसे जनाब 2-4 स्टार करके रखिए. Is it clear? Now, after that 9, please come to number 16.